Okay, everyone, so let's get started. Actually, we were working on storytelling. You already know that we have completed our uh, do does, is RM, and have has and have been has been. So we have to work on storytelling. So today I have got some topics, and first I'll teach you some tools of storytelling. And from today, our speaking starts. And after a week, your Hindi speaking will be permanently stopped in the batch. And if any one of you speaks in Hindi, will have to pay fine. I hope you understand. Agree? Yes, What sir. is Yes, sir. fine, sir? What is Yes, How sir. fine? many, how many rupees? We will decide on the spot. Don't worry. 50 rupees. Yeah, it could be. It could be. I mean, I don't want any Hindi word. So okay, Yeah, let's sir. Yeah. let's get started. So turn off your audio. Fine, guys. So see, in English, there are two important things I always say. The very first thing is called conversation. As far as conversation is concerned, you the guys have learned. Wait a minute, somebody is coming. This is very bad. When I start teaching and if someone comes, it is bad. It's not good. Okay. What I was saying that when people are coming and again and again. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay then. Start it. Okay, so what I was saying that if I talk about conversation, so you already know in conversation there are two important things: asking questions and replying. So for asking questions, we need some helping verbs. Helping verbs. I have taught you how many helping verbs? Do, does, is, are, am, have, has, and have been, has been. And I have Helping sir P missing. something is missing. What is? P. Wait a minute. Wait a minute. Yes, Okay. yes, sir. Yeah, how loud you speak, buddy. Okay, so do, does, is, are, am, have, has, have been, has been. And uh, these helping verbs have different situations. You already know I don't talk about Hindi pehchan and all. Do, does means related to routine activities. Is, are, am means continuity. Have, has means completed action. And have been, has been means something is started in past but still going on. This is. And we have also completed some situations without action. It means state of being. State of being. So when we talk about state of being, we know about am, is, are, in past was, were, in future will be, isn't it? And state of possession. In possession, we have completed have, has for present, had for past, and will have for Yeah. future. And we also know some state of being with time. Then you use have been, has been. And we know some state of possession, possession with time. You use have had and has had. And in past, had had. Got it? So now, Yes, sir. I got it. whoever is new here or whoever is the student of this batch, please let me know, is there any section which you feel yourself to be very feeble, you don't think that you are confident about, then I may teach you again. Here, the situations are before you. Any problem in these helping verbs in asking questions or replying? Any issue?
or you can take your time at your home. You can think and let me know tomorrow, isn't it? So I'll give you this file. I just want that, are you comfortable in these helping verbs or not? Comfortable means like, if you think of any sentence, doesn't matter Hindi or your own language, as per the situation, are you able to choose whether it is do, does, is, are, am, have, has, like you are able or not? This is what I want to know. You have to let me know. If I say that, okay, you have to ask your mama about tea making, she went to kitchen to make tea, you have to know whether she has completed or not. So which helping verb are you going to choose? What do you think? Tell me. Perfect. Which helping verb will you choose to ask questions? Do you? Your mother. Have. Have So As. Have you completed? whoever said have is correct, and who said do is wrong. Now I don't know who said have. Who said have? Priyanka. Yeah, she's right. So this is how you have to practice. So the list is here before you. If you feel yourself to be weak in any section, you can let me know. I'm just highlighting helping verbs, state of being, state of possession, state of being with time, Sir, state of possession with time. Go ahead. yes, sir, has a present perfect. You have problem in present perfect. Yes, sir, has a. Okay, we will. So tomorrow we will talk about these things. Whatever the problems you have, you just have to write in the group. Tomorrow we will tackle those things. It would be kind of a doubt session. But today I'm going to teach you about storytelling. Okay, sir. Yes. Fine. Man, we have learned so many things. Wow. Okay, buddy. So let's get started. Storytelling, and here we go. See. So when we talk about storytelling, guys, in storytelling there are some tools. Today I'm going to discuss all the tools, then we may start storytelling. The first tool is whatever happened in any past time. For that you need a structure which is called second form. Okay. So whatever you did yesterday, day before yesterday, last night, whatever you did, you don't have to think in Hindi. You just have to think that, okay, something completed. That day I told you, let me give you an example like this. Okay, let's take an example like there is a girl, and whatever her name is, now this girl is standing here in front of you. This is her present time. Okay, this is the present time. But and you are standing here, you are talking to the girl. So you both are in present time, but you want to know something she did yesterday. You don't want to know about her daily routine or current activities. You just want to know something she did yesterday. So yesterday, this is the past time. Yesterday, this adverb, yesterday is the past time. If you say yesterday morning, then she will only say whatever she did in the morning. If you say yesterday evening, then she will only say whatever she did in the evening. But if you say yesterday, she could say anything. It could be morning, afternoon, evening, story, anything. So you have to give her a time, or give any person a time, that what would you like to know about. You want to know about any past time. It could be like, okay, tell me something when your husband was angry. It means now she will talk about that moment only. If you say tell me something about when a car hit you, then the person is going to tell you about that moment only. Tell me something when you were very much ill, then the person is going to tell you about the same point. So what we are going to learn is, we have to use verb second in order to narrate those actions which were done in a particular time. It could be any time. So this much is okay. You the guys understood what I want to tell you? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. yes, sir. Irrespective Yes, of sir. a, e, or whatever, irrespective of those things. So if I want to narrate a story about a girl, the girl's name is suppose Neetu. So I would like to narrate a story about Neetu's yesterday activities from morning till night. So whatever the sentences I am going to form will be based on which structure? Second form structure. Second form. And what we will figure out?
seeing this second form, it means completed action in that particular pastime. If I say that, okay, Neetu got up at 6 a.m. yesterday, it means what? What am I talking about? I'm talking about this action completed at what time? 6 a.m. When it was 6 a.m. yesterday, suppose this is Neetu. This is Neetu, this is the present time. Suppose this is the present time. This is Neetu, she's sleeping. And now, if you see the clock, now it is 6 o'clock. It's a 6 o'clock. So when it is 6 o'clock, suddenly what happened? She got up. Got up. It means suddenly this action took place. This action took place at what time? At 6 o'clock. Now, थोड़ा हिंदी में बोलिए सर। थोड़ा हिंदी में बोले, कसम से दिमाग से उतर गया था कि मैं सर टुडे मॉर्निंग भी पास्ट ही होगा ना? हाँ, दिस मॉर्निंग कहते हैं, दिस मॉर्निंग, टुडे नहीं लगाते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। मैं क्या कह रहा था कि फ्लो टूट गया मेरा, Because you are a true teacher. वो एक अच्छा फ्लो बन गया था। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि ये नीतू है, तो जैसे 6 बजते एक एक्शन हुआ, वो कौन सा एक्शन हुआ? उठने का एक्शन हुआ, समझ रहे हैं? तो इसको हिंदी मीडियम में लोग क्या कह देते हैं कि उठी, ई की मात्रा लगा देते हैं, या अगर कोई लड़का बोलेगा मैं उठा तो आ की मात्रा लगा देते हैं। बस यही फर्क है हिंदी और हमारे अंग्रेजों की स्टाइल में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, उनका भी अपना स्टाइल है। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ ये सिचुएशन, जैसे 6:30 जैसे बजे, 6:30 बजे नीतू किचन में गई, इन्होंने एंट्री लिया। तो अब अगर मुझे कहना है कि 6:30 बजे नीतू किचन में गई, अब मैं हिंदी सोचूं पंजाबी सोचूं, अंग्रेजों के हिसाब से तो 6:30 बजे एक एक्शन हुआ, किचन में घुसने का एक्शन हुआ। अब ये एक्शन मैं कैसे बोलूंगा? मैं नीतू को शी कह सकता हूं, यस और नो? यस सर। अब किचन में गई, अब एंटर्ड भी यूज कर सकते हो। एंटर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एंटर्ड। शी एंटर्ड द किचन एट 6:30। उसके बाद इन्होंने 50 काम किए, सब गिनवा दो। अब आप बीच बीच में क्या लगा दोगे? आफ्टर दैट, ऐसे लगाते चले जाओ। जैसे आपको बोलना है कि ओके, उसके बाद वो ऑफिस चले गए। आफ्टर दैट शी वेंट टू ऑफिस। ओके, फिर वो शाम को घर वापस आ गई। देन शी केम बैक होम। शाम को बोले तो इन द इवनिंग। ओके, 9 बजे उसने खाना पकाया। आफ्टर दैट शी cooked food at 9 p.m. Okay, उसने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खाया। Completed. She had food, है? He had food. अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि हम ये भी कह सकते हैं she ate की जगह हम ये भी कह सकते हैं she took, और हम ये भी कह सकते हैं had। इसमें तो कोई अंतर नहीं है ना? मालूम है ना कि ओके है ये? Yes sir. Sir, I know. अभी आजकल जो चला हुआ है दोस्त, ये सब नहीं चला है। आजकल क्या चला हुआ है? had। कि she had food अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, with her family members. मान लो 9:30 बजे at 9:30. उसके बाद वो सोने चली गई। After that she went to bed and slept. Went to bed। उसके बाद अगर मैंने उसको बोलना है कि एक्चुअली जब कोई बेड पे जाता है उसे पता नहीं रहता ना कितने बजे सोया तो इसीलिए लोग वेंट टू बेड करके छोड़ देते हैं, जा भाई। ओके सर। नींद तो आपको अचानक आती है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको एक ओवरऑल बताया कि सेकंड फॉर्म है। तो इस स्ट्रक्चर से आप क्या साबित कर पा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं कि किसी पास टाइम में जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया, बस वो दिखाने के लिए कौन सा फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म। अब बताओ कि कल मैं ऐसे ही रैंडमली एक सिचुएशन दे रहा हूं, अब बोलो, एक लगाओ पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग है कि कल मैं अपने कमरे में थी, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसे बोलेंगे? I was in the room yesterday. ठीक है, yesterday I was in my my room है, अपने कमरे में। ठीक है, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि एक्शन है? ये तो पता है ना क्या है ये? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। अब मुझे बोलना है कि अचानक
किसी ने Suddenly. दरवाजा खटखटाया अचानक, Suddenly. तो सडनली Someone knocked the door. Suddenly somebody knocked the door. Someone knocked the door. अब बताओ सेकंड फॉर्म Knocked होगा कि the नहीं होगा? door. होगा ना सेकंड फॉर्म? Knocked Yes, sir. second. Knocked the door. भाई साहब ये ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए, यहाँ से बहुत ज्यादा समाचार आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। रमेश का ऑडियो खराब है। हाँ गाइस, जिसका ऑडियो खराब है जरूरी नहीं कि आप रिपीट करें मेरी बातों को यहाँ पर, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओके, सो yesterday I was in my room, suddenly someone knocked the door. यहाँ तक ओके है, फाइन। मैंने दरवाजा खोला, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, क्या लगता है? I opened I the door. opened the door. Opened the पक्का door. सेकंड Second फॉर्म form. होगा? ओपन द डोर। जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सर हमें पता नहीं, मैं वाज लगाऊं, जैसे यहाँ कुछ लोग क्या कर देते, मैं एग्जांपल देती, जैसे नीतू कर देती थी कि जहां आई ओपन द डोर है, अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आई वाज ओपन द डोर, तो आप महा गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पता चल रहा है ना आपको कि आप गलत Yes, बोल रहे हो? क्योंकि क्या जरूरत है ये वाज लगाने की? आप क्यों एक्स्ट्रा लगाना चाह रहे हो? नहीं चाहिए ना बाबा, हटा दीजिए। ये अंतर समझिए कि वाज हम कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अभी सर आप वाजवर एक्शन वर्ड में नहीं लगेगा। लगेगा, वो कंटिन्यूटी में लगेगा, आएंगे उस पर। अच्छा अच्छा। आपको जो वाजवर सिखाया गया है वो सिखाया गया स्टेट ऑफ बीइंग का भी। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या कोई एक्शन होता है? नहीं होता ना। No, sir. तो अभी इस कहानी में आप जबरदस्ती वाज डाल देते हो, आप वाज नहीं डालेंगे अभी। मैं बस इतना बता रहा हूं कि सेकेंड फॉर्म जब आप लगाएंगे तो उसके साथ कोई वाज नहीं चाहिए। डन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बताइए। तो मैंने दरवाजा खोला, ओपन द डोर, फाइन। अब मुझे एक स्टेट ऑफ बीइंग लगाना है कि दरवाजे पर मेरी माँ थी। स्टेट ऑफ बीइंग है ये, कैसे होगा? माई My mother at the door. My mother was at the door. The door. हम ऐसे भी अगर हम देयर से लगाए तो कि देयर वाज There was my mother on the door. एट द डोर, एट द डोर। हम लगा सकते हैं। ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तो जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं ना दोस्तों, तो देखो कहाँ कहाँ स्टेट ऑफ बीइंग आ जाता है, अचानक आ जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग में कोई एक्शन नहीं है, मेरी मम्मी वहां पर थी, अब आप छत पर थे, कमरे में थे, बाथरूम में थे, ये दिखाने के लिए क्या चाहिए? स्टेट ऑफ बीइंग चाहिए पास्ट का, और पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग वाजवर ही होता है। वाजवर के साथ आपको लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन दिखाना है। ठीक है, मेरी मम्मी अंदर आई, अब ये बताओ स्टेट ऑफ बीइंग की एक्शन सोचो। Action. She came inside. My mother came My inside. mother came in. अब बताना ये गलत है कि सही है। जितने लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, क्या मैं ऐसे बोल दूं कि माय मदर वाज केम इन? No, sir. नो सर नो। No, sir. नहीं ना? यानी कि भैया जिधर Was नहीं सेकंड है। फॉर्म आएगा आपको वाज नहीं लगाने का है। नहीं लगाना। Simple. My mother came inside. माय मदर की, इसीलिए आप बेसिक क्लास ले रहे हो ना कि एक एक चीज क्लियर हो जाए। माय मदर केम इनसाइड, ठीक है। अब ध्यान देना। मेरी माँ ने मुझसे कहा, My mother My mother said My mother said to me. अब यहीं पर सब कुछ है दोस्तों। जैसे सेड होगा, सेड टू मी, आई सेड टू हर, इसके बाद का जो डायलॉग होगा ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस टेंस में होगा। किसी भी टेंस में हो सकता है। मैं यहां पर लिख देता हूं एनी टेंस, कुछ भी हो सकता है, मत कीजिए। तो माई मदर सेड टू मी, अब एनी टेंस मैंने कर दिया है, मैं फिर से लिख दूं कि माई मदर सेड टू मी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? अब क्या होगा? Why तुम मुझसे don't you बात talk क्यों- to him? Why are you not डोंट talking होगा to कि her? आर यू नॉट होगा, सोचिए। Don't नहीं नहीं आर यू Are कर रहा है। you, sir, are you? Why are you? Are you? Why aren't you? Yes. Why are you Why are you not? Why या are why you aren't not you में talking कैसे? to her? Why are you not not talking to her? to me? मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा तू? ऐसे मैंने अपनी माँ से कहा, आई I said I said to my mother. My mother. mother. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है माँ कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ? दो सेंटेंसेस है। Why Why do you think- रुको पहले द गाय फ्रॉम ड्राई सिटी गुजरात। बोलो क्या डू यू लगता है पहले में हाँ, तो तो क्या नाम है इनका? अनिकेत। हाँ हाँ Why? अनिकेत तो जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा उसमें दो सेंटेंस का हेर फेर है। अभी पहला है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ? अरे हाँ। बोलिए। व्हाई डू यू लगता है का मीनिंग क्या होता है? व्हाई डू यू
think 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 Think. Why do Why you do you think think? I am not talking to you? why do you think, आप चाहो तो यहाँ that लगा सकते हो. Why That do you that think that I am not talking to Talking to you? you. ठीक है, आ सर गया ना आता समझ? तो सर मगज में से ना ऐसा होता है, सब कुछ आता है तो नहीं तू गलत बोल रहा है, अंदर से ऐसा होता है। अभी अंदर जो शैतान बैठा है ना, उसका बाल पकड़ के थोड़ा बाहर खींचो, हैं? अभी प्रैक्टिस नहीं वैसी आता करना है पड़ेगा सर, ना. नहीं नहीं आता है सर बाहर। why do you होगा ना? Why do you think that I am not talking to? सही तो है. Why do सर you? do Oh, के sorry. आगे यू नहीं लगाना Why आप do भूल you? गए। टाइपिंग मिस्टेक. अकेला है। बंदा Yes क्या क्या sir. करे. टाइप कर रहा हूँ मैं ह्यूमन आपके लिए. होता है, सबसे होता है। So why do you think that I am not talking to you? तो यहां तक आपको ये said जब भी आएगा तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, यहां हाईलाइट कर दूं, said के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको पास्ट ही लगाना है. जी नहीं, यहां प्रेजेंट भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, या ऑर्डर रिक्वेस्ट, मतलब मैं लिख ही दूं क्या? ऐसे कर देता हूं कि said to me के बाद क्या क्या आ सकता है. प्रेजेंट भी हो सकता है, Present, पास्ट भी हो सकता है, future. फ्यूचर भी हो सकता है. हो सकता है आप ऑर्डर दोगे, हो सकता है आप रिक्वेस्ट करोगे, हो सकता है आप किसी को एडवाइस दोगे. एनीथिंग, कोई गारंटी नहीं भैया. सर ऑर्डर आपने नहीं सिखाया है। हाँ, तो ऑर्डर में टाइम ही कितना लगता है, इधर आओ उधर जाओ, यही तो ऑर्डर है, हो जाएगा. और वो तो आता है वो डिफिकल्ट ऑर्डर वाला। अच्छा, तो डिफिकल्ट तो इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो, वो भी सिखा देंगे. ओके। अभी अभी मगज में सब आएगा. मगज में आवड़ी जैसे। फाइन फाइन गाइस. ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब क्या है, अब एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं इसको? आस्क्ड. Asked. ये भी आएगा स्टोरी टेलिंग में, ये आएगा, पक्का आएगा. जैसे हम जब किसी से कोई सवाल करते, जैसे हो कि अचानक मेरी सिस्टर आ गई, सडनली Suddenly my माय sister Suddenly my सिस्टर sister केम, came और उसने मुझसे पूछा, एंड and she asked me. Asked. आस्क्ड मी. आप में से जितने लोग हैं, एक गलती बिल्कुल मत करना, मैं समझा रहा हूं. यहां पर ये मत कर देना कि आस्क्ड टू मी. आप में से कई लोग टू लगाते हैं, मुझे मालूम है, कई लोग के मुंह से टू निकल जाता है. कोई टू नहीं होता है. शी आस्क्ड मी. ये बताओ, मैंने राम से पूछा, कैसे होगा? आई आस्क्ड राम. कोई टू नहीं, कोई टू है ही नहीं. राम ने मुझसे पूछा, राम. Ram asked me. Ram asked me. ये तो इसका ख्याल रखना, कोई टू नहीं होता है इसके अंदर. हाँ, सेड में टू लगा सकते हो. सेड में देखा ना, इधर टू है, सेड में लगा सकते हो. और सेड को अकेला भी रख सकते हो. जैसे टू लगाओगे तो फिर यहाँ किसी का नाम लेना पड़ेगा ना, जैसे आई सेड टू माई मदर. अगर तुम चाहो तो बिना मदर बोले खाली सेड कह सकते हो. समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आई सेड यू आर लुकिंग कूल. आई सेड ऐसे करके बोल सकते, या आई सेड टू हिम यू आर लुकिंग कूल. दो तरीके. ओके, सो माई सिस्टर आस्क्ड मी. तो जब सवाल पूछा तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. ये भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट भी हो सकता है, present पास्ट भी past हो सकता है, future Past भी हो सकता है. फ्यूचर भी हो सकता है. और इसमें ऑर्डर कैसे आएगा? शी आस्क्ड मी. इसमें सवाल ज्यादा होगा ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होगा. प्रेजेंट का क्वेश्चन, पास्ट का क्वेश्चन, या फ्यूचर का क्वेश्चन, ये हो सकता है. करके देख लेते हैं. तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा, तू मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है? तो अब क्या हो जाएगा कि माई My sister asked My me, sister why are asked you not talking to? why are why you are not you talking to me? not Why are you not talking to talking me? to me? ओके, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, I asked my sister. सिस्टर. said to my sister आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do Why you do you think that? You think so? think so? मतलब ऐसा मतलब ये जो जितना आप सोच रहे हो इसको सो कह दिया मैंने. Why do you think so? तो अब बताइए कि said asked जो नए बच्चे हैं, कोई तकलीफ? नहीं सर. ठीक है. टीचर ने मुझसे पूछा, कैसे होगा? Teacher asked asked to me. कोई टू कह रहा आप में से, कोई तो बोला है टू. Yes. रमेश. बिल्कुल टू. इस क्लास का मतलब क्या है जो आप सीखेंगे नहीं?
अच्छा, मैंने अपनी माँ से कहा। I asked my I mother. said to my आई mother. सेड टू माई मदर। I said to my mother. मैंने डॉक्टर से पूछा। I asked the I doctor. I asked I asked asked द doctor. डॉक्टर, द इसलिए लगा रहे होगा अपना डॉक्टर तो द लगा doctor. रहे। ओके, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा। Security Security guard asked asked me. guard asked me. asked to me. Asked me, तुम कहाँ जा रहे हो? Where Where are are you you going? going? Where are you going? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। I said I said I said security to guard. guard I- to security guard. आई सेड टू द सिक्योरिटी गार्ड, मैं रूम नंबर 204 में जा रहा हूँ। I am I am going I am going going to to the room number room number 206. 204. ओके, उसने पूछा तुम किससे मिलना चाहते हो? He He Asked asked. whom me. do He you asked want to me. meet? How do we? आप चाहो तो मी नहीं भी लगा सकते हो। ही आस्क्ड सर किससे मिलना चाहती हो? Whom do you want to? whom do you want to meet? मैंने Whom do कहा you want to meet? I said I said 204 में मेरा दोस्त रामचरण रहता है। my friend My friend my Ramcharan friend Lived in lives 204. Room number 204. रूम नंबर 204। ओके, 204. 204. सिक्योरिटी गार्ड ने कहा रामचरण कमरे में नहीं है। she said Ramchandra is not in his room. Ramchandra is not in the room. तो ये स्टेट ऑफ बीइंग आ गया ना? Yes sir. Yes sir. तो प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है कि पास्ट का है? प्रेजेंट। Present. Present. इसलिए मैंने कहा ना प्रेजेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से। I asked. I asked I asked the security guard. रामचरण कब वापस आएगा? फ्यूचर। When will come? When when will will Ramcharan come? When will Ramcharan come back? Ramcharan come back. Come back. Come back. सिक्योरिटी गार्ड ने come back. कहा। Security guard said Security guard. security guard said Said, Said वो तो रोज रात को 8 बजे आता है। अब ये कंटिन्यू वो है, रूटीन है। He comes he daily comes at night. at 8 o'clock comes daily. to 8 He o'clock. comes back at 8 o'clock. Every 8 day. o'clock. 8 o'clock. मैंने कहा। I said. I said I said अब ये जो मैंने कहा है ना, यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। मैं जरा लिख दूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, पक्का पड़ेगी। मैं कहीं पर यहाँ लिख दूं, कहाँ गया सेट वाला आइटम, कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस, और इसके साथ क्या आ सकता है? कंडीशनल। conditional. क्योंकि अभी मुझे एक जरूरत पड़ी है। और ये प्रेजेंट पास्ट के अंदर मैं भी लिख दूं कि इसके अंदर सब आ सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग भी आ सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी आ सकता है, ऑडियो कुछ भी आ सकता है। कंडीशनल की जरूरत कैसे पड़ी? कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आई सेड टू द सिक्योरिटी गार्ड। अब कंडीशनल देखना, जब वो आएगा उसको कहना कि छेनू आया था। कैसे होगा? When will he come? जी When नहीं, will जी नहीं, पहला ही When सेंटेंस he गलत है, comes. पहला ही गलत है। when he comes When he comes. या फिर if he comes या when he comes sir. आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बता सके कि when और if में अंतर क्या होता है? अब हिंदी में मत कहना if मतलब अगर और when मतलब जब। ये अगर जब वाले नहीं चलेंगे। रियल अंतर बताओ। मतलब आपसे अगर मैं बोलूं कि एक मिनट, आपसे मैं बोलूं कि डॉग क्या होता है? when sir रुक जाइए। आपसे अगर बोलूं डॉग क्या होता है, आपने बोला सर डॉग तो कुत्ता होता है। अरे भाई तो फिर कुत्ता क्या होता है? आप बोलोगे ना डॉग एक ऐसा एनिमल होता है जो भौंकता है, ऐसे करके बताओगे ना। वैसे बताओ वेन क्या होता है। ये मत बता देना कि वेन का मतलब तो जब होता है। टाइम के बारे में बता रहा है सर वो when, यानी कि जिस टाइम पे वो आएगा। इसके अंदर पक्का नहीं है ना वो आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो वेन इन्होंने एक ने बोला वेन टाइम है, एक ने बोला कि वेन में पक्का नहीं है। कैसे लिखो? नहीं इसमें अच्छा इसमें पक्का नहीं। ओके, तो वेन में क्या है? पक्का है वेन में? सर कंफ्यूजन है थोड़ी। ओके,
गाइस सबसे सर पहले ये है तो कि टाइम नहीं पता लेकिन वो आएगा जब भी आएगा। यस 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 करेक्ट और इफ में 50-50 है कंडीशन है आएगा सर, तो। इफ में यदि वो आए तो आएंगे। सही पकड़े। हाँ व्हेन के अंदर है कि आप श्योर हैं कि कभी ना कभी तो आएगा, आप श्योर हैं बट नॉट नोन द रियल टाइम। टाइम और इफ के अंदर क्या है भैया? श्योरिटी नहीं है। हाँ, नो श्योरिटी, नो श्योरिटी, श्योरिटी पता ही नहीं कि आएगा नहीं आएगा, तो मैं टाइम क्या बताऊं? व्हेन में है तो कि आज ना आए कल आए, हो सकता है 8 बजे आए, तो रियल टाइम आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा हूं, सिक्योरिटी गार्ड भैया से कह रहा हूं कि जब वो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, ये तो श्योर है, तो जब वो आएगा उसको कहना, जब वो आएगा की इंग्लिश क्या होगी? When he comes। When he comes. When he इसमें comes। will नहीं लगेगा, when he comes, जब वो आएगा। अब उसको कहना, टेल हिम कि छेनू आया था। कंडीशनल जीरो है ना। Chenu comes दैट छेनू came that छेनू अब आया था, मतलब तेरे जब तू निकल गया उसके बाद आया था तेरे, यानी कि तेरे वापस आने से पहले ही वो आ चुका, तो छेनू हैड कम, छेनू हैड had come। Okay। आया कुछ समझ में? इसको कहते सर हैं, इसमें will क्यों नहीं आएगा? when he comes। हाँ जी, इसके लिए कंडीशनल पढ़ना पड़ेगा। सर आपने पढ़ाया तो ना फर्स्ट कंडीशनल, मतलब YouTube पे है वीडियोस यस, की। आप कंडीशनल फर्स्ट पढ़ लेना YouTube पे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं तो इस बैच में तो सब सिखाना ही है, कंडीशनल सब कुछ सिखाना। अभी हम स्टोरी पर चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक है, एक दो स्ट्रक्चर और रह गया, बता दो। अब एक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने प्रेजेंट में आपको स्टार्ट कराया था, जी सर। तो पास्ट में क्या हो जाएगा फिर? स्टार्टेड। Started. जेरेंट लगा देंगे। अब Yes, ये sir. ये इस एक्शन को दिखाता है। मान लीजिए कि ये आप हैं, ओके, ये है प्रियंका, और यहाँ है कोई लड़का, कोई ऑब्नॉक्शियस सा लड़का है, इंसोलेंट लड़का है, ये कुछ कह रहा होगा, ये गई और रसीद करने लगी, चटाक 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 चटाक। तो अब इनको बोलना है कि मैं उस लड़के के पास गई और चाटे मारने लगी। ये जो एक्शन इन्होंने चालू कर दिया, कैसे बोलेंगी? I went to the boy. I went to the boy. To the boy. I started And slapping started. slapping him. him। तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग में ये तड़का जरूर लगाइएगा, स्टार्टेड वाला। ये दिखाता है कि आपने क्या परफॉर्म करना शुरू कर दिया। डजंट मैटर हिंदी क्या है और पंजाबी मद्रासी कुछ मत सोचो, और गुजराती ना सोचो, बस सिचुएशन देखो। सिचुएशन ये है, आप मुझे बताना इसमें स्टार्टेड की फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही। जैसे आप ये हो, आप कह रहे हो कि जी मैं तो किचन में गई और जाते मैं प्याज काटने लगी, यानी कि आपने प्याज काटना आरंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यही है ना? आप कैसे बोलोगे? Yes, sir. इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? I went to I went to kitchen। I started chopping onion। कुछ भी लगा सकते हो, started मोशन cutting the onion. किचन एंड I started Started cutting Onion। चॉपिंग कर दें, Chopping। चॉपिंग कर देते हैं, बहुत सारे चॉपिंग। ठीक है जी, यानी कि स्टार्टेड समझ में आ गया। अब एक और वो याद है, अपना कीप ऑन याद है? तो उसका कीप का Yes, क्या sir. हो जाएगा? Keeps on, kept, Kept। sir. अब kept बोलो कि on. यार मैं तो 15 मिनट तक प्याज काटती रही, अब क्या बोलोगे आप? I I kept on chopping chopping onions for 15 minutes. फॉर 15 Until 15. नहीं वो फॉर सही है, फॉर 15। मैं सब डिफरेंस बताऊंगा, टिल अनटिल अनलेस दुनिया भर के बता दूं। अभी जो चाहिए, जो जरूरत है वो लीजिए। जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। तो आपको अभी जो भाएगा ना, जो सूट करेगा ना, वही अभी कराऊंगा। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से सब कुछ जानते हैं, बट भाई इस क्लास में हो तो झेलना तो पड़ेगा। ऐसे ही चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, तो सब कुछ हो गया है, बस एक आइटम रह गया, उसके बाद हम आज से बातें शुरू करेंगे। इस आइटम का नाम है DID,
क्या पढ़ेंगे इसे? डिड। इसको हल्के में ना ले, मैं इसको भारी कर देता हूँ, बहुत खतरनाक है ये। इसको वजनदार कर देता हूँ। और चुप सर। इतना इम्पोर्टेंट है ये, इसके बगैर तो आप एक भी दिन नहीं जाएगा आपका। इसका साथ बहुत जरूरी है। अब किधर खो गया ये? अरे अनिकेत, यस यस सर। अभी वापस कैसे लाऊं? कंट्रोल जेड दबाऊं क्या? हाँ, वापस आ गया। यस 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 बोलो। ओके, चलिए गाइस, तो ये जो DID है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, लेट मी टेल यू गाइस, वेट अ मिनट। अब बहुत ध्यान देना, इसके हिंदी पे ना जाना। यहां पर एक लड़की है, अनिकेत, ये सवाल आपके लिए है। ये लड़की है, ये प्रेजेंट टाइम में खड़ी है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। और यहां पर अनिकेत है। अनिकेत भी सामने खड़ा है, तो प्रेजेंट टाइम हो गया, दिस इज प्रेजेंट टाइम। अब अनिकेत इस लड़की से जानना चाहता है कि हे देवी, ये बताओ कि कल रात आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था। अब अनिकेत गुजराती में सोचे, डजंट मैटर, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? डिड यू हैव फूड? यस गाइस, तो ये उगलवाने के लिए कि किसी ने कल परसों नरसों बीते हुए टाइम में कुछ एक्शन परफॉर्म किया कि नहीं किया, किया तो कब किया, किसके साथ किया, ये उगलवाने के लिए हमारे पास जो आइटम है उसका नाम है DID, यानी कि डिड। ओके, कब इसको डांस इंडिया डांस समझ लो। तो कैसे बोलेंगे? डिड प्लस दुनिया का कोई सब्जेक्ट, इसको डिड को फर्क नहीं पड़ता कि ही शीट और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोला, मैडम जी क्या आपने कल रात को डिनर लिया था? तो कैसे? डिड यू हैव dinner yesterday night, last night. मैडम जी का जवाब फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा? फैसला करके बताइए। Second. सेकंड में आई हैड कि हाँ जी मैंने लिया था डिनर। yesterday Yes, I had dinner yesterday. लास्ट नाइट। Last यस्टरडे नाइट night. नहीं होता है। कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। हम टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको बोलना है आज सुबह, तो टुडे मॉर्निंग नहीं होता है, क्या होता है? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह। तो उसी तरीके से आज दोपहर तो दिस आफ्टरनून, आज शाम तो दिस इवनिंग, This evening. और आज रात तो Tonight. ठीक है ना? कभी उसको दिस नाइट बोल दो, सबका बना बनाया है। तो उसी तरीके से कल रात को क्या बोलते हैं? लास्ट नाइट। Last night. ये ऐसा बोला जाता है। बाकी आप यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब इनको मना करना है कि नहीं 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 नहीं, मैंने कल रात खाना नहीं खाया यार, तो नो। I didn't. अगर एक कॉमन सेंस है कि अगर कोई डिड से सवाल करे तो डिड में नॉट लगा के नेगेटिव बना दो। तो आप डिड में नॉट लगाओ, शॉर्ट में क्या हो जाएगा? Didn't have इसके dinner. दो शॉर्ट, एक तो डिडंट है, ऑफिशियल है, चलता है, और आजकल क्या है? डिडंट है, ये मेल वगैरह में नहीं चलता है। और अब आजकल तो लोगों ने क्या किया, वो ट भी नहीं बोलते, डिन बोल के निकल जाते हैं, डिन। तो ये उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? First one. प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं खाया? नो, आई डिडंट Have food. डिनर लास्ट नाइट। अब आप लगाओ WH। क्यों नहीं खाया भाई? Why didn't you have food? कल कितने बजे तुम सोई? At what What time What time did you you sleep? Go to bed? Did you go to bed Go to bed. last night? Last night. Okay. कल तुम पार्क किसके साथ गए थे भाई? With whom did you go to park yesterday? Yesterday. Okay. कल नाश्ते में क्या खाया था भाई? What What did you What have have in have in the Breakfast. breakfast yesterday? yesterday?
तो हम ऐसे सवाल करते हैं। ठीक है गाइस, आज का कंप्लीट हो गया है, मैं फाइल आपको भेजता हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस पर कहानी बनानी है। अभी आज 4-5 लोग जिसको लगता है वही चुनेंगे, बोलेंगे। सर कुड यू प्लीज रिपीट, जैसे कि आपने जो कंडीशनल के बारे में बताया था, सम टाइम के लिए मैं चली गई थी। एक्चुअली वो तो कल तो मैंने ऐसे ही बता दिया। इस क्लास में कंडीशनल स्पेशल डे होगा कि कंडीशनल ही सीखेंगे। कल तो मर्ज था ना, वो इसलिए। नो सर, जैसे अभी आपने बताया बीच में एक सेंटेंस डाला था। आपकी बात कर रही है सर। ठीक है, मैं अभी सर वो फर्स्ट कंडीशनल वाला जो था। हाँ, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ओके। जैसे मुझे कहना है कि अगर वो आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। अगर वो आएगी तो हम हिंदी में तो ऐसे बोल देते कि अगर वो आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। लोगों को देखने में क्या लगता है कि अच्छा आएगी फ्यूचर और बात करूंगा ये भी फ्यूचर, दो फ्यूचर लगते हैं। जिनको नहीं पता वो ऐसे बनाएंगे, इफ शी ऐसे बनाएंगे, इफ शी विल कम आई विल टॉक टू हर। वैसे थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। जो इफ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिए, इफ शी कम्स कर दीजिए। इफ शी कम्स आई विल टॉक टू हर। जब वो आएगा उसको कहना कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था। जब वो आएगा, when he comes tell him कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था, that I was talking about him। ओके, जब वो रोएगी उसको कहना कि मेरे कमरे में आ जाए, when she cries। अब उसको कहना कि मेरे कमरे में आ जाए। टेल से भी ज्यादा अच्छा है ask her to come into my room। ये सब है। इनडायरेक्ट ऑर्डर जिस दिन सिखाऊंगा ये आस्क समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आज जो हमें चाहिए वो मिल गया है, आप इस पे काम करें थोड़ा सा। चुनिए गाइस, चुनिए। टॉपिक आपके सामने है, चुनिए। पढ़ के देखिए क्या है। ऑडियो ऑफ कीजिए, बच्ची की आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ कीजिए जी। जैसे पहला है कि yesterday when I was going downstairs suddenly my leg slipped। आप नीचे जा रहे थे सीढ़ियों से, आपका पैर फिसल गया। तो इस पर आपको एक छोटी सी कहानी झूठ मूठ की बनानी। मैं चेक करूंगा सही है गलत, और लोग आपसे फिर सवाल करेंगे। 2 मिनट में सब हो जाएगा। दूसरा है, कल रात I heard footsteps emanating from my roof। छत से कदमों क्या बोलते हैं, पैरों की आहट, चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था छत पे कुछ चल रहा है। तो एमिनेट का मतलब होता है आना, इसको कमिंग कह लो। फुट स्टेप्स जो साउंड है ना वो आ रहे थे। यहां लिख देता हूं फुट स्टेप साउंड। आई हर्ड फुट स्टेप साउंड एमिनेटिंग फ्रॉम माई रूफ, ये आवाज आ रही थी। थर्ड है, लास्ट वीक कहाँ गया, लास्ट वीक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो अ बॉय डेलिबरेटली पुट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर। आप मेट्रो से सफर कर रहे थे, एक लड़का आपके बगल में था, उसने आपके कंधे पर जानबूझ के हाथ रख दिया। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, नहीं पता वर्ड को लिख लिया कीजिए। डेलिबरेटली जानबूझ करके, इसको नोइंगली भी कह सकते हैं। चौथा है कि yesterday when I was going somewhere, मैं कल कहीं जा रहा था या जा रही थी, with my husband जा रही थी, suddenly a girl waylaid us। एक लड़की ने हमारा रास्ता घेर लिया। वेले का सेकेंड फॉर्म वेलेड है, वर्ड लिख लीजिएगा। रास्ता रोक लिया। एंड स्लैप्ड माई हस्बैंड, और मेरे पति को रसीद कर दिया। अगर आज ना बने तो आप लोग कल इस पे काम करना, मैं ये भेज दूंगा आपको। लास्ट नाइट व्हेन आई वाज हैविंग अ स्ट्रॉल इन माय लॉन, मैं अपने पार्क में टहल रही थी। सडनली अ गर्ल क्राइंग केम टू द मेन गेट पर एक लड़की रोती हुई आई एंड स्टार्टेड बैंगिंग देन, और वो गेट को बैंग करने लगी। बैंग का मतलब धम धम मारने लगी उस पे। छठा, व्हेन आई लॉस्ट द केस ऑफ अ
murdered होना चाहिए. Lost the case of a murdered his henchman waylaid me in the market. Murderer होना चाहिए. एक खूनी था, मतलब आप एक वकील हैं. Murderer. आप एक वकील हैं, आपको कोई केस मिला लेकिन आपने नहीं जीता, आपने लूज कर दिया, तो उसके जो चेला चपाटी थे, हेंचमैन का मतलब होता है चेला चपाटी, मतलब उसके गुंडे गुर्गे, तो जो हेंचमैन थे उन्होंने आपका रास्ता रोका मार्केट में. नंबर 7 है Hooligans. हाँ कह सकते. लास्ट ईयर समवन नॉक द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया. व्हेन आई ओपनड इट, जब मैंने खोला, आई फाउंड नो वन बट अ पीस ऑफ पेपर एट द डोर. दरवाजे पर तो कोई नहीं था लेकिन एक कागज का टुकड़ा था. तो अगर आप में से किसी से अभी बन सकता है तो एक ट्राई कीजिए, नहीं तो कल तो आप करना. एक दिन पहले आपको टॉपिक दे दूंगा मैं. आज तो ऐसे ट्रायल वर्जन है, ओपन चैलेंज है, कोई भी जिसको लगता है. सर मैं ट्राई करूं? ठीक है, अभी आपके पास पूरा 10 मिनट है. मैं आपका टाइम नोट करता हूँ. 2 मिनट 1 मिनट कितना भी ले सकती हैं. आपका नाम बता दीजिए. मैं नहीं पूछी थी. What is your name? ऊपर आ गई. ओ देखो. Tell me your name. Hello. नूपुर. Nupur. Okay. Nupur, which topic have you chosen? सर लास्ट में वो जो था ना, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है. लास्ट 10 नंबर. अच्छा नूपुर, ये जो आपने मुझसे बोला इसको इंग्लिश में एक बार बोलिए तो प्लीज. सब कुछ. सर प्लीज स्क्रॉल अप द स्क्रीन. आई वांट टू सी. It means you already know English. Despite it, you try to speak in Hindi. This is very bad, Nupur. Yes, sir. I also. I also. That's why after 1 or 2 days, I am going to make a rule that you will be imposed with lot of fine. It could be 50 rupees per word. So please try to speak in English only. If somebody doesn't know English, okay, he or she can speak in whatever language he or she understands or knows. You already know, dear. Speak in English only. Okay, Nupur? Okay, sir. Okay, so which one have you chosen? Number 7. Last one. Last 10th number. 10th? I think when my room is 7th number. Last year someone knocked the door. When I opened it, I found one piece. I found. Wait. Wrong color has been selected. Wait a minute. Okay. Control Z. This is very dark color. Okay. I found no one but a piece of paper at the door. Okay. Create. And to try. After Nupur, I will try. Okay. Then my name is Neetu. Okay. Neetu. And me, sir. After Neetu. Sir, I want to try 7th number. You are fully allowed. Come on, we are waiting for you. Start. Yes, sir. I will choose number 2. I am here Last with you year- for 5-7 minutes only. Go ahead. लास्ट ईयर है सर, मतलब वो कैसे. ओके, लास्ट ईयर में एक दिन, 1 day. कैसे बोलूं? Last year. आपको सुनता है मैं. On it's just name any day. Last year on Monday, something like this. Okay. Last year on Monday, I in daytime, in afternoon, I was siesta. Suddenly, I was taking siesta. I was taking siesta. Suddenly, my doorbell is ringing. Started ringing. I'm correcting you. I'm correcting you. Started ringing. And I went to the went to the door, and I opened the door. Suddenly, I saw one piece of paper, and I picked it up. I picked it up and I opened the paper. I saw there was written, I am coming. So, but there was no any name. So I
I was very scared. What to do? I got very scared. I got I got very scared. What to do? I that time I मतलब मैं इधर उधर देखने लगा क्या होगा. I started looking hither and thither. Here and there. Hither and thither. Okay. Then I started looking hither and thither, but nobody. I did not see anyone there. So then I came. I entered my room and closed the door. After that, I phoned the police station, and I told everything. The police inspector. I told everything to police inspector, and he assured me, you don't worry. We will taking this matter. We will look into the matter. I look in the matter. बहुत सारे पुलिस वाले एक ही थोड़ी हो. We will look into the matter. Okay. उन्होंने कहा ना, he said that we will look into the matter. चलेगा. Sir, I have a doubt. Sir, what is the difference of pickup and lift? कोई भी चीज अगर पड़ा हुआ है छोटा मोटा, आप ऐसे पिक करते हैं, ऐसे करके पिक कर लेते हैं. लिफ्ट का मतलब है कि आप हैवी चीज को उठाते हैं. इसीलिए वेट लिफ्टर होते हैं, वेट पिकर नहीं होते हैं. ठीक है. रिमूव एंड मूव में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो ये डाउट सेशन कब है हमारा? कल है ना. तो कल अब सारे के सारे डाउट्स आप लोग लिखिए, उस पर हम काम करेंगे. जिसके मन में जितने डाउट्स हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक से हटके होंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे. उसके लिए रात को 9 बजे के बैच में आप आ सकते हैं, 8 बजे के बैच में आ सकते हैं. ओके सर, दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं सर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. यहाँ आम है, उधर इमली पे बात हो रही होगी. और ज्ञान चंद्रा को तो मैंने कई बार कहा है कि आप इस बैच में मत आइए. जिन लोगों को डाउट सेशन की क्लासेस लेनी है वो उनको आना चाहिए किसी अलग बैच में. ये तो भैया अपना रूल से चलेगा. उनको आना चाहिए रात को 8 बजे 9 बजे ऐसे आना चाहिए. ठीक है, एक कहानी और लेते हैं. नीतू ने बोला है, if you send me link, then I will join that. Have you taken admission, Gyan Chandra? You have taken admission? Okay sir, okay. You have not taken admission yet? Oh, yes sir. Fine. Chali, Neetu, come on. Which topic? 1. Topic 1. Yes sir. Oh, here we go. Could you show me? Okay sir. Yesterday when I was going downstairs, suddenly my sir downstairs मतलब सीढ़ियों से जा रहे थे. सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे. जी. Okay. Yesterday when I was going downstairs, suddenly my leg slipped and I fell down. After falling down, my husband, I shouted and my husband come over there. My husband came over there. ये after falling down होगा? ऐसा होगा क्या? After falling down? After falling down? Okay sir. गिरने के बाद. After falling down, I started shouting, and my husband came over there, and he said to me, "What happened?" I said, "I was fell down when I was fell down गलत है. रुकिए. I was fell down गलत है. क्या कहना चाहिए? यहाँ was लगा रही है. अभी समझाया था ना? I fell down. Okay, I fell down and I had so pain in my hand. So my husband told me, okay, we both went to we both will go to the hospital. And after some time, we went to the hospital and take some medicine. We took some medicine and then we come back. Came back my home. Okay sir, that's it. ठीक है, आपकी वही प्रॉब्लम है कि आप फर्स्ट सेकंड करती रहती हैं और एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाती हैं. मैं बार आपको टोकूंगा, इसीलिए कंप्लीट सही कीजिए. 2 मिनट बचे हुए. कौन? 2 मिनट. सर, I may be try 3 number.
ठीक है, चलिए ममता देन लकी. Mamta, which number? So Mamta? second, sir, second. Second number. Last night I heard food. Oh, ठीक है, चलिए सुनाइए. One night I was sleeping. I woke up for drink water. After drinking water, then I went to the bed. I was trying to sleep. Suddenly I heard someone footsteps. I scared. I did not get up and covered our bedsheet and I slept. Covered myself with the bedsheet, ऐसा है ना, खुद को ढक लिया. हाँ जी, हाँ जी. और पानी Covered myself. हाँ, myself खुद को ढक लिया. Okay, okay. और आपने for drink कहा तो to drink होता. Okay, to drink. ठीक है, चलो लकी, which topic? Yes sir, I also choosing number 2. बोलिए बोलिए, क्योंकि बस ये लास्ट है, क्योंकि फिर मुझे निकलना है. Yes sir. Yesterday I had a dinner with my family. Then I went to bed. Went for my bed. After 4 hours, I suddenly I woke up and I felt somebody on the roof. So I wanted to सर भाई को जगाया, उसमें क्या बोलेंगे? मतलब भाई को जगाया. Yes. I woke my brother up. I woke my brother. And he said me. Said to me. He said to me, "Are you okay?" I said, "Yes, I am okay." And I shared that story. One guys on the roof. Then we went to on the stair, but it was my dream. ओके, ठीक है, काफी फाइन गाइस. तो आप समझ गए कि अब हम स्टोरी टेलिंग की तरफ जा रहे हैं. 2 काम हमें करने हैं, स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन में पूरा डूडर्स हैव बीन तक तो आप जानते हैं. अभी डिड एक नया आ गया. तो अभी हम इस 5 आइटम हो गया हमारे पास. 4 सिचुएशन पहले थी, 5वां सिचुएशन, टोटल 12 सिचुएशन है. और धीरे धीरे अब आपकी हिंदी बंद हो जाएगी, तो आपको खुद एक चेंज लगेगा. आप मानो ना मानो, आपको लगेगा हाँ यार फर्क पड़ रहा है. जब लगे कि फर्क पड़ रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार प्रोग्रेस हो रहा है. नहीं तो आप बस ऐसे ही टाइम पास करोगे. ठीक है गाइस, सी यू टुमारो. आप चाहे तो आप पीडीएफ भेज दीजिएगा. पीडीएफ भेज दूं? ठीक है, अभी भेज देता हूँ. यस सर. थैंक यू गाइस, आई हैव टू गो. थैंक यू, टेक केयर. बाय. Okay, sir. Bye, sir.